त्रिपाठी सर चालू करूं क्या प्रोग्राम? हेलो। हाँ जी मैडम, हाँ, चालू करते हैं। हाँ हाँ चालू करते हैं। अच्छा। Good afternoon to all of you present here. On behalf of Department of Physics, Institute of Science and Research, IPS Academy Indore, I, Dr. Usha Singh, is pleased to inform you that we are organizing our third lecture in our expert lecture series program on physics for curious minds, which will start soon within few minutes. We have conducted this program in collaboration with Internal Quality Assurance Cell, IPS Academy Indore, and Indian Association of Physics Teachers, MP Region RC9. To all of you who are present on the digital forum, I extend a very warm welcome. Let us first honor Ma Saraswati by playing online Saraswati Vandana as per our Indian tradition. Mayank sir, please start Ma Saraswati Vandana. Sound नहीं आया सर. मयंक सर साउंड ही नहीं है. ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी नमः। ॐ ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी नमः। ॐ ह्रीं श्रीं वद वद वाग्वादिनी नमः। सा दा मा रे सा सा नी प ग रे सा रे मा प ध सा। कागेश्वरी नमस्तुभ्यं वन्दे वीणावादिनी। पाणिपुस्तक तथा माल्यां शाश्वती शारदे नमः। शाश्वती शारदे नमः। शुक्लाम्बरं धरे देवी शुभपद्मासन संस्थिता। स्वरं देवाणि देवातः मुनिमन विपिन विहारिणी। मुनिमन विपिन विहारिणी। ॐ ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं वद वद। Hello, am I audible? हाँ जी मैम। हाँ जी sir. There is some technical problem, so we could not continue our Saraswati Vandana completely. Anyway, our today's speaker is Dr. S.B. Velinkar, and topic of his lecture is energy and interaction. He is one of the best teachers and a very kind human being. Now I request Dr. Javeer Singh to give brief introduction of Dr. S.B. Velinkar. Javeer sir, please.
अनम्यूट करो जयवीर सर, अपने को अनम्यूट करो पहले। A very good afternoon to all of you. It is my pleasure to introduce today's speaker, Dr. S.P. Valenkar, professor in Department of Physics, IPS Academy, Indore. He did his graduation from Dewas and post-graduation from Government Holkar Science College, Indore, Madhya Pradesh. After that, he completed his PIB from DAVV, Indore in nuclear physics. He started his job as a lecturer in physics in 1963 and worked on the same post up to 1985 at Government College Dewas, Sihor, and Holkar Science College, Indore. On deputation, he joined Professor Babulal Saraf Physics Education Project, Ratlam, during 1996 to 1998 for development of experiments at Holkar Science College, Indore. He worked as a professor and head at Holkar Science College, Indore from 1998 to 2003. And he retired in 2003. He has teaching experience more than 58 years, and he has published 9 research papers in referred journals and conferences. Since 2003, he is working as a professor of physics in Department of Physics, IPS Academy, Indore, and he is one of the founder member of IAPT RC9 office, Indore office. He started Professor Babulal Saraf experimental workshop in IPS Academy in 2009, and this workshop is based on the experiments on nuclear physics and quantum. जयवीर सर अनम्यूट करो अपने को। Javi sir, can you hear me? बेटा देख कर आना जयवीर सर का थोड़ा सा। हाँ मैम, हो गया अनम्यूट। अच्छा, हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अभी स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, कंप्लीट हो गया मैम। अच्छा, okay, thanks Dr. Javeer Singh. Now we will commence our program. I hope we all will continue to consider and ponder his wise thoughts. Velenka sir, kindly start your lecture please. Velenka sir, unmute कर लीजिए अपने को। Can you hear me? Yes sir. Yes, sir. अरे सर को परमिशन दो मयंक सर शेयर करने की स्क्रीन। पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार स्क्रीन ये हो। हाँ, हॉटस्पॉट दे देता हूं। पता नहीं क्या हो रहा है, गड़बड़ है कुछ। आज तो नेटवर्क का इश्यू है शायद। नहीं, नेट तो सब चल रही है। आ रही है आपकी स्क्रीन? हाँ, आ रही है, स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है स्क्रीन? हाँ जी सर। ओके। सर स्लाइड शो पे ले आइए। हाँ, स्लाइड शो पे चालू कर लीजिए। मैं देखता हूँ।
अरे गोविंद सत्ता स्लाइड शो चालू करना। पूरी स्क्रीन दिख रही है ना? अच्छा, स्लाइड शो पे आइए आप। हाँ? हाँ, स्लाइड शो पे, यस। करंट स्लाइड से कर दीजिए, करंट स्लाइड। ये हाँ, यहाँ फ्रॉम बिगनिंग कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अब हो रही है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
अनम्यूट कर लीजिए वेलिंकर सर। हेलो। हाँ जी सर। स्लाइड शेयर करा सर पहली स्लाइड पे चले जाइए। वो मोबाइल हाँ, स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग। पीपीटी मोड पे करिए सर। हाँ जी सर। मीटिंग भी बंद नहीं हुई मैंने। So it is a very general lecture and the topic is energy and interaction. हम जो भी देखते हैं दुनिया में वो सब एनर्जी है। ये इस इक्वेशन से प्रूव होता है, आइंस्टीन की इक्वेशन से, E इक्वल टू mc स्क्वायर। जो भी हम देखते हैं वो मास है, मास, लाइट, जो भी देखते हैं सब कुछ एनर्जी है। एंड दिस इज द इक्वेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल, E इक्वल टू mc स्क्वायर। सवाल ये उठता है कि ये सब एनर्जी, इतनी सारी एनर्जी कहाँ से आ गई? तो इसके लिए आपको हाउ द यूनिवर्स हैज़ टेकन बर्थ, वहाँ पे जाना पड़ेगा कि ये ब्रह्मांड कैसे बना है, हाउ द यूनिवर्स एग्जिस्ट। तो जो लेटेस्ट थ्योरी है इसके बारे में वो है बिग बैंग थ्योरी। यानी आज से करीब 13.8 अरब वर्ष पहले ये पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जितनी एनर्जी आपको दिख रही है वो सब एक पॉइंट में थी या एक छोटे से बॉल में थी। और फिर कुछ हुआ स्पॉन्टेनियसली, एक ट्रिगर, और उस ट्रिगरिंग के साथ वो पूरी एनर्जी जो एक पॉइंट में, छोटे से बॉल में थी, वो एक्सप्लोड हो गई। एक महाविस्फोट कह सकते हो, ऐसा हुआ। और ये जो इवेंट है इसे ही बिग बैंग कहते हैं। और जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद ये ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ। और वो फैलते फैलते आज जो हम यूनिवर्स देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं। तो पूरे यूनिवर्स के अंदर जो सबसे फंडामेंटल लॉ है, और ये फिजिक्स का भी फंडामेंटल लॉ है, द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। यानी वो बिग बैंग के समय जितनी भी एनर्जी थी, कुछ पार्ट उसमें से मास में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो भी है दैट मास प्लस एनर्जी इज अनम्यूट करें वेलिंकर सर आप अपने आप को।
तो 10 टू द पावर में 0 सेकंड पे यदि बिग बैंग हुआ तो 10 टू द पावर -6 सेकंड से 1 सेकंड के बीच में पार्टिकल्स बने, क्वार्क्स एंड ग्लूऑन्स। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, व्हाट आर द क्वार्क्स। लेकिन ये 10 टू द पावर -6 सेकंड पे क्वार्क्स बने और फिर कुछ मिनटों के बाद और न्यूक्लियाई बने, सिंपल न्यूक्लियाई। यानी ये जो क्वार्क्स थे इनसे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बन के और फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके न्यूक्लॉन्स बने, न्यूक्लियाई बने, सिंपल न्यूक्लियाई। और फिर करीब 3,79,000 ईयर्स, इतने सालों के बाद बिग बैंग के एटम्स बने। और फिर एटम्स बनने के बाद दूसरी चीजें बनते चली गई और इस प्रकार से ये ब्रह्मांड की रचना हुई। लेकिन है सब ये एनर्जी, एवरीथिंग इज मास एंड एनर्जी। अब क्यों नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं आ रही? उसी पे रहने देते यार स्लाइड को। हाँ, आ गई है नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब जब ये यूनिवर्स बना, बिग एक्सप्लोजन, बिग बैंग, तो उसी के साथ 4 interactions have appeared on the scene. इंटरएक्शन है ना, फोर्सेस समझ लो आप, सिंपल लैंग्वेज में फोर्सेस, 4 टाइप के फोर्सेस जो है वो अपीयर होते हैं, उत्पन्न हुए। 4 प्रकार के फोर्सेस उत्पन्न हुए हैं जो इस डायग्राम में दिखाया है, इवोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये बिग बैंग यहाँ पे हुआ, उस समय सब फोर्सेस एक ही फोर्स था। ये कौन सा फोर्स था, इसका क्या नेचर है, इसके बारे में अभी ज़्यादा क्लियर नहीं है। थिंग्स आर नॉट मच क्लियर अबाउट दिस सिंगल फोर्स। जिस दिन इसका पता चल जाएगा तो हमें पूरे ब्रह्मांड की गुत्थी जो है, ऑल द सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि बिग बैंग हुआ और जो एनर्जी एक पॉइंट में थी वो स्प्रेड अप हो गई। फिर उसके बाद ग्लूऑन्स और ये बने, और उसके बाद ये यूनिवर्स एक एक करके बनते चले गए। 4 फोर्सेस आए वहां पे, 4 फोर्सेस हैव अपीयर्ड। सबसे पहले ग्रेविटी, फिर स्ट्रॉन्ग फोर्स सेपरेट हुआ सिंगल फोर्स से, फिर वीक फोर्स और कूलम फोर्स, इस प्रकार से। अब देखिए, जब बिग बैंग हुआ तो यहाँ पर
एनर्जी सबसे ज्यादा थी, तो जो फोर्सेस अलग हुए वो अलग अलग एनर्जी पे अलग हुए। और आप जितना राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो सबसे कम एनर्जी पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स अलग हुआ है। स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए और ज़्यादा एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी है, और उसके पहले सबसे ज़्यादा एनर्जी थी सिंगल फोर्स पे। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि यदि ये सब कुछ एनर्जी है तो ये एनर्जी इस डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे आई, हाउ द एनर्जी टुक डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स। तो एनर्जी को चेंज किया और अलग अलग फॉर्म में एनर्जी आ गई, और हर एक चेंज के पीछे, फॉर एवरी चेंज, इंटरएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल। इंटरएक्शन है जो 4 फोर्सेस मैंने आपको बताया है जो अपीयर हुए बिग बैंग के साथ ही, यही चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एवरी चेंज is due to some kind of interaction, some kind of force. अब यहाँ पर ये थोड़ा सवाल उठता है कि यदि आप कुछ चेंज करना चाहते हो, किसी एक वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना चाहते हो, तो उसका प्रोसेस क्या है? आप सोचते हो, आप में एक अवेयरनेस होती है, जागरूकता, आपको पता होता है, और इसलिए आप एक वस्तु को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख पाते हो। यदि ये अवेयरनेस यानी नोइंग, ये नॉलेज कि मुझे ये वस्तु को यहां से उठा के यहां पे रखना है, ये चेंज है, दिस इज अ चेंज। तो ये चेंज लाने के लिए सबसे बड़ी बात होती है अवेयरनेस, यानी नॉलेज, जानना। और मैंने आपको बताया कि जो भी चेंज दुनिया में हो रहा है, इस ब्रह्मांड में जो भी चेंज हो रहा है, वो फोर्सेस के कारण हो रहे, इंटरैक्शंस के कारण हो रहे, जो क्रिएशन के साथ ही सीन पे आ गई। तो सवाल उठता है कि क्या ये जो इंटरैक्शन है इसमें अवेयरनेस है, क्या इनमें नोइंग है, इनमें भी कुछ जानने जैसी चीज इसमें कुछ है क्या? यदि है तो वो कुछ चेंज कर पाएंगे। तो इसका आंसर यस है। हाँ, जो नेचर के जो फोर्सेस है, ये इंटरैक्शंस, इनमें एक अवेयरनेस है, लेकिन एक लिमिटेड अवेयरनेस, एक सीमित उनमें नोइंग की पावर है, एक सीमित जागरूकता है उनमें। जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया सबसे पहले, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे काम करता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक बॉडी, एक जिसका मास है, वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है, तो उस मास को, दूसरे मास को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करना है, ये अवेयरनेस उसमें होती है। उसको मालूम होता है कि दूसरे बॉडी का मास क्या है, दूसरी बॉडी हमसे कितनी दूर है, और उसको फिर कितने फोर्स से अट्रैक्ट करना है, ये उसे मालूम होता है, ये उसको अवेयरनेस होती है, और इसलिए वो उसको उस एग्जैक्ट फोर्स से वो अट्रैक्ट करती है। तो ये लिमिटेड अवेयरनेस हर इंटरैक्शन में है, और इसलिए वो इंटरैक्शन एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हुए और चलती है। जैसे हम दूसरी इंटरैक्शन जिससे आप बहुत अच्छे से परिचित हो, इट इज द कूलम फोर्स। एक चार्ज को मालूम होता है कि जो दूसरा चार्ज है
वो प्लस है कि माइनस है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो कितने डिस्टेंस पे है, ये सब उसको मालूम होता है। ये लिमिटेड अवेयरनेस उसकी है, और उससे वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है। और यही बात जो रिमेनिंग टू इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग और वीक इंटरेक्शन, उसके साथ भी होती है। वैसे तो हम ये जो यूनिवर्स है इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। और जनरली हम जो फिजिक्स को डील करते हैं वो नॉन लिविंग यानी मटेरियल से डील करते हैं हम फिजिक्स के अंदर, मासेस, चार्जेस। और ऐसा माना जाता है कि इसमें लाइफ नहीं है, लेकिन लाइफ नहीं है फिर भी इसके अंदर, क्योंकि हर चेंज अवेयरनेस के कारण, इंटरेक्शन के कारण हो रही है, तो उसमें एक प्रकार की अवेयरनेस और इंटरेक्शन होती है। और इस नॉन लिविंग वर्ल्ड में इंटरेक्शन के थ्रू अवेयरनेस एंटर हुई है। और इसलिए ये इनएनिमेट वर्ल्ड, जो निष्प्राण ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं, इसमें भी एक अवेयरनेस है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो अवेयरनेस है, लिमिटेड अवेयरनेस है, ये डार्विन के सिद्धांत के अनुसार साइंटिफिक प्रूफ अबाउट इट। लेकिन ये इंटरेक्शन के थ्रू अवेयरनेस जो है वो इस नेचर के अंदर सबसे पहले एंटर हुई, 10⁻⁻⁶ सेकंड से ये आ गई है उसके अंदर। यही जो अवेयरनेस है, ये क्वांटम मैकेनिक्स भी इसको रेफर करता है। उसमें थोड़ा से डिफरेंट फॉर्म में ये अवेयरनेस उसमें आई है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो डेवलपमेंट हुआ वो इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट हुआ। और क्वांटम मैकेनिक्स के आने के पहले जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स था, उसके अंदर ये था कि हर एवरी इवेंट, हर चीज फिक्स थी। यदि आपको मालूम है कि आज वस्तु यहाँ पर है, उस पर इतना फोर्स लग रहा है, उसका ये एक्सेलरेशन है, तो उसका पूरा फ्यूचर पाथ, आने वाले समय में वस्तु कहाँ पर होगी, कितनी वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में जा रही होगी, ये सब आप बता सकते थे न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये टोटली चेंज हो गया जब क्वांटम मैकेनिक्स आया। अब क्वांटम मैकेनिक्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। लेकिन वहां पर फ्यूचर इज नॉट वेल डिफाइंड एज इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो आज की एक्सेप्टेड थ्योरी जो क्वांटम मैकेनिक्स है, उसके अंदर फ्यूचर जो है वो डिफाइंड नहीं होता, लेकिन फ्यूचर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। अलग अलग संभावना के साथ अलग अलग रूपों में भविष्य कैसा होगा, कौन सी स्टेट में रहेगा सिस्टम, ये प्रोबेबिलिटी के रूप में होता है। किसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी के होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। लेकिन जब उसको देखा जाता है फ्यूचर में, तो जो बहुत प्रोबेबल स्टेट है उसमें से एक प्रोबेबल स्टेट, चाहे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी भी कम हो, यदि उसको देख लिया तो वो जो स्टेट है वो 100% प्रोबेबल हो जाती है, और रिमेनिंग स्टेट जो है वो 0 हो जाती है। यानी यहाँ पर जो देखने की क्रिया है, अब ये देखने वाला एपरेटस भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली एपरेटस ने भी कोई इवेंट रिकॉर्ड किया है तो उसको देखेगा बाद में आदमी ही। तो अवेयरनेस जो है वो इस रूप में क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा और फिजिक्स में एंटर हुई है। इसको हम कहते हैं कोलैप्सिंग ऑफ स्टेट। और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स का ऑब्जर्वर है,
ये जो एक क्वांटम मैकेनिक्स ने बता दिया कि बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, और जब देखी गई तो ऑब्जर्वर ने जो देखा वो 100% सही हो गया। इसके कारण बहुत फिलोसॉफिकल चेंजेस आए। फिजिक्स के अंदर बहुत फिलोसॉफिकल चेंजेस आ गए। तो इस प्रकार से जो एनर्जी है वो इन इंटरेक्शंस के द्वारा अलग अलग रूपों के अंदर जो है वो रूप ले रही है, और मासेस बन गए, स्टार्स बन गए, गैलेक्सीज बन गई, और सब कुछ एनर्जी है। और एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एनुअल पावर कंजम्पशन है, ये 2019 का इंडिया का एनुअल पावर कंजम्पशन है, इट इज 865 बिलियन किलोवाट आवर। यानी यदि इसको जूल में कैलकुलेट करें हम, 4.68 10 टू द पावर 18 जूल। अब वो जो आइंस्टीन की इक्वेशन है E = mc², यदि हमने 52 किलोग्राम मास लिया और उसको mc² यानी c² से मल्टीप्लाई कर दिया, c3 10 टू द पावर 8 है, तो उसको 52 को 9 × 10 टू द पावर 16 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 4.68 10 टू द पावर 18 जूल हो जाता है। यानी हमारा जो इंडिया का एनुअल पावर कंजम्पशन है, यदि हमारे पास कोई ऐसा जनरेटर है कि जिसके अंदर हम इधर आयरन की छड़ें डाल रहे हैं और उधर हमको इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही है या दूसरी पावर मिल रही है, तो 52 kg ऑफ आयरन रॉड्स, इससे पूरे इंडिया का एनुअल कंजम्पशन पूरा हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई जनरेटर, ऐसी कोई मशीन नहीं है कि हम इधर मास डालें और उधर हमको एनर्जी मिल जाए। और एनर्जी जो है वो आज सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जानते हो, कई लोग कहते हैं कि जो वॉर होती है, इराक के ऊपर जो आक्रमण हुआ था वो एनर्जी के लिए हुआ था, पेट्रोल के लिए हुआ था। तो जो एनर्जी है, सब दुनिया एनर्जी है, लेकिन यूजफुल एनर्जी इज अ डिफरेंट थिंग। और ये जो यूजफुल एनर्जी है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है और वो किस इंटरेक्शन से, क्योंकि इंटरेक्शन के द्वारा ही सब फॉर्म चेंज हुए हैं। तो हर एक एनर्जी जो है यूजफुल एनर्जी, उसके लिए एक इंटरेक्शन है इन 4 इंटरेक्शंस में से। हर एक इंटरेक्शन के साथ कुछ यूजफुल एनर्जी अवेलेबल है, और हमें उसी को समझना है कि एनर्जी कहाँ पर अवेलेबल है, यूजफुल एनर्जी, ताकि हम उसका हमारे काम के लिए उपयोग कर सके। तो ये समझने के पहले मैं आपको इंटरेक्शन है कॉमन लैंग्वेज में वो फोर्स हो गया। कॉमन लैंग्वेज में इंटरेक्शन है फोर्स। तो बेसिकली फोर्सेस जो है वो 2 टाइप के फोर्सेस है। वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत ही एलिमेंट्री चीज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी एलिमेंट्री बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो 2 फोर्सेस है वो है डिसिपेटिव और फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर है ना, जो एनर्जी को बनाए रखता है कांस्टेंट इन टाइम। तो इन 2 फोर्सेस को समझना बहुत जरूरी है। तो इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक ये ग्रेविटी का फोर्स मैंने बताया, जो कि ये जो 4 फोर्सेस है उसमें से एक बेसिक फोर्स है। इस ग्रेविटी के फोर्स के अगेंस्ट हमने एक वस्तु को ऊपर फेंका। तो आप जानते हो कि यदि बॉडी ऊपर जा रही है तो जाते जाते धीरे धीरे वो रुक जाएगी। और सबको मालूम है, ये आप 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसको मैंने डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश की है कि जब बॉडी ऊपर जा रही है और देखो ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है और बॉडी जो है ऊपर जा रही है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी को मैंने रेड बार से बताया है
और पोटेंशियल एनर्जी को ग्रीन बार से बताया। तो ऊपर जाते जाते जब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही तो वो रुक जाती है किसी पॉइंट पे जाके, अब उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, हाफ mv² v जीरो हो गया, लेकिन उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड आप देखो, अब वहां पे बॉडी रुकती नहीं है, अब वहां से वो नीचे आना शुरू होती है, क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स। तो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है तो अब फोर्स की डायरेक्शन में चल रही है वो, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही है, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते होते ग्राउंड लेवल पे आते आते फिर से पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी आ गई। यानी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, और पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में आ गई है। यानी बॉडी के अंदर ही टोटल एनर्जी जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट रही। कि बीच वाली पोजीशन पे चले जाओ तो आप दोनों की सम देखोगे तो फिर भी वही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो ये फोर्स जो है ग्रेविटी का फोर्स, इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। मतलब एनर्जी जो है वो कहीं उसी पे रह गई। वैसे तो एनर्जी हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, दिस इज फंडामेंटल लॉ, लेकिन यहाँ पर वो बॉडी के अंदर ही रह गई है। अब आपको दूसरे टाइप के फोर्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। अब देखो यहाँ पर बॉडी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर नहीं जा रही, यहाँ पर बॉडी को रोल किया है सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे mgh पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे h तो सब दूर सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आप देखो, रेड जो बार है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी और जीरो हो गई। अब कई बार मैं क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई एनर्जी इज कॉन्जर्व, तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ चले गई, तो गलती से लड़का बोल देता है कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई क्या। लेकिन आप देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि बॉडी वहां पे रुक गई, अब ना आगे जा रही ना पीछे जा रही है, अब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, तो उसकी एनर्जी कहाँ चले गई। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो ठीक है एनर्जी कांस्टेंट है, इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज नो मोर इन द बॉडी। क्या होता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट जब आप हाथ रगड़ते हो, फ्रिक्शन होता है तो हीट जनरेट होती है, वैसे यहाँ पर फ्रिक्शन के अगेंस्ट हीट जनरेट होती है, और वो हीट जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इस फॉर्म में वो हीट एटमॉस्फेयर के अंदर निकल जाती है। तो एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट इज लॉस्ट इन द सेंस एटमॉस्फेयर से अब उसको हम वापस नहीं ला सकते, एटमॉस्फेयर से उस एनर्जी को हम वापस नहीं ला सकते। तो ये जो फोर्स हुआ फ्रिक्शनल फोर्स, ये दूसरे टाइप का फोर्स है, डिसिपेटिव फोर्स। इसको हम घर्षण जाति का बल या डिसिपेटिव फोर्स कहते हैं, और ये फोर्सेस नेचर के अंदर बहुत कम है, बहुत ही कम। एक फ्रिक्शनल फोर्स है, एक है विस्कोसिटी का फोर्स, श्यानता, और तीसरा है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर का रेजिस्टेंस। लेकिन जिस फोर इंटरेक्शंस की बात की मैंने, all the four interactions, gravity, strong, weak and Coulomb, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस है। इसमें एनर्जी सिस्टम के अंदर बनी रहती है, और इन फोर्सेस से जो डिराइव्ड फोर्सेस है, दूसरे फोर्सेस जो कि कंजर्वेटिव फोर्सेस से ही प्राप्त होते हैं, वो भी कंजर्वेटिव नेचर के ही होते हैं।
जैसे सरफेस टेंशन का फोर्स है, वंडरवॉल्स फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियॉन और दूसरे न्यूक्लियॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अब देखो, जो मैंने स्लाइड बताई थी आपको, पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में कब आई थी, याद करो। ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा था, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा था और बॉडी जो है वो ऊपर जा रही थी। यानी इसको कैसे समझो आप, इसको ऐसे समझो कि अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट, आकर्षण के बल के विरुद्ध जब वस्तु दूर होती है, when the body moves away against the attractive force, then the potential energy of the body increases. तो यहां पर मैंने आपको यही बताया है, ये जो बॉडीज है इनमें ये जो ब्लू एरोज है ये फोर्स की डायरेक्शन बता रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यदि ये बॉडीज अट्रैक्टिव फोर्स में पास आई है, जैसे वस्तु अर्थ के पास आती है, ऊपर से नीचे गिरती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो जब ये वस्तुएं बहुत पास पास है ऊपर वाले डायग्राम में, तो इनमें सब काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी को रेड बार से बताया, देखो कितनी सारी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कम है। लेकिन इन अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट ये एरो फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है। और बॉडीज कहाँ गई है अब, अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट बॉडीज दूर गई है। दूर जाती तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी उनकी कम होके उनमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो बस ये जो यूजफुल एनर्जी है हमारे लिए, मैंने आपको बताया सभी कुछ एनर्जी है, लेकिन यूजफुल एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी रहती है। और ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा फोर्स के कारण, ड्यू टू फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी is present in the body. When the bodies are away against the force of attraction, then they possess the potential energy. और इस पोटेंशियल एनर्जी का उपयोग अब हम, ये यूजफुल एनर्जी हमारे लिए किसी तरकीब से हम इन बॉडीज को पास में लाएंगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन, मोशन को हम उससे कॉइल को घुमा सकते हैं मैग्नेट्स के अंदर जनरेटर में और इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका हम हमारे काम के लिए उपयोग में उसको ला सकते हैं। तो ये है यूजफुल एनर्जी। और याद रखो, अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट यदि बॉडीज सेपरेट हुई है, सेपरेटेड अवस्था में है, तो उनमें कौन सी एनर्जी है, उनमें पोटेंशियल एनर्जी है। और यदि वो पास आती है, ये याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। और अट्रैक्शन फोर्स के डायरेक्शन में यदि वो पास आती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ये काइनेटिक एनर्जी यूजफुल एनर्जी है और इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो रेनी सीजन के अंदर सन की एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अगेंस्ट ऊपर जाते हैं और उनमें पोटेंशियल एनर्जी आती है। और जब पानी बरसता है तो इस वाटर को हम ऊपर ही ऊपर रिजर्वायर में स्टोर करके रख लेते हैं। तो वो किसी हाइट पे होने के कारण उनमें पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो फिर हाइड्रो टर्बाइन्स बनाए जाते हैं, उस पानी को नीचे गिराते हैं। नीचे गिरने पे उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है, उससे जनरेटर चला के हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे लिए यूजफुल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। वेरी सिंपल, सबको मालूम है।
ये अपोजिंग फोर्स रहता है, अपोजिट फोर्स के अगेंस्ट भी हम कुछ डिस्टेंस चलते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स और डिस्टेंस। यानी फोर्स जितना स्ट्रांग होगा, जितना पावरफुल फोर्स, और उस फोर्स के अगेंस्ट वस्तु जाती है तो उसमें कौन सी एनर्जी आएगी? द बॉडी विल possess potential energy. So it is directly related to the strength of the force. फोर्स जितना स्ट्रांग रहेगा उतनी बॉडी यदि सेपरेट होती है, एक दूसरे से दूर जाती है, तो उतनी ही ज्यादा उनमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। तो जो हमारी 4 इंटरैक्शंस है, मैंने आपको बताया, ये 4 इंटरैक्शंस ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस है और इनके कारण पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी तो उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। तो हमको फोर्स की स्ट्रेंथ यानी इंटरैक्शन की स्ट्रेंथ जानना जरूरी है कि क्या उनकी स्ट्रेंथ है, कितनी उनकी ताकत है। तो सबसे पहले यदि हम कूलम फोर्स को ले और कूलम फोर्स की स्ट्रेंथ को 1 मान ले, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ 60 है। इट इज 60 टाइम्स ऑफ द कूलम फोर्स। और ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी की स्ट्रेंथ 10 to the power -41 है। अब ये डोंट गो टू दिस नंबर 41, 10 to the power 41 है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हो गई, वहां पे माइनस साइन लगी है। वास्तव में ये 10 to the power -41, दिस इज वेरी 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 स्मॉल। यानी आप समझ लो कि कूलम फोर्स के तुलना में ये ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है, निग्लिजिबल है। इसलिए जब हम एटम और न्यूक्लियस की बात करते हैं तो वी नेवर कंसीडर ग्रेविटी। पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन के अंदर ग्रेविटी को हम निग्लेक्ट कर देते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या, आप कोई भी एटॉमिक और न्यूक्लियर फिनोमेना जब फिजिक्स में स्टडी करते हो तो आपने कभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं की, क्योंकि वो निग्लिजिबल है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि आपने एक थर्मोकोल का छोटा सा बॉल लिया और उसको एक कंघी से रगड़ के, ऐसा शर्ट पे कंघी को रगड़ो और थर्मोकोल के बॉल पे रखो तो वो ऊपर आ जाएगा। अब नीचे कौन खींच रहा है उसको, थर्मोकोल के बॉल को? अर्थ, पूरी अर्थ नीचे खींच रही है। और आपने जरा से कंघी के ऊपर चार्ज लिया और रखा और वो अर्थ को डिफीट करते हुए ऊपर आ गया, क्योंकि कूलम फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रांग। इतना स्ट्रांग है कि आप ग्रेविटी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो कूलम फोर्स में बनेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू ग्रेविटी। और स्ट्रांग फोर्स में तो एनर्जी और भी ज्यादा रहेगी। अब जब आप इंटरेक्शन की बात करते हो तो स्ट्रेंथ के साथ साथ इंटरेक्शन का एक और पैरामीटर होता है, यानी फोर्स वो किन के बीच में लग रहा है, वो क्या प्रॉपर्टी है जिसमें फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितने दूर तक काम करेगा, कितने दूर तक काम करेगा, हाउ लॉन्ग द फोर्स विल एक्ट, इसको हम रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ द फोर्स। और किस पे लगेगा, कौन सी प्रॉपर्टी है जिस पे फोर्स लगता है, तो ये भी डिसाइडेड है। जैसे ग्रेविटी की बात करें तो ये 1/r² का रूल है, तो 0 तभी होगा जब r इंफिनिटी होगा, mg1 g2 gm1 m2/r²। तो इसकी रेंज इंफिनिटी है। और काय पे लगता है ये मास और एनर्जी पे लगता है। अब दुनिया में हर चीज एनर्जी है, मास भी एनर्जी है, तो ऐसा कुछ नहीं है जिस पर ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगता। ग्रेविटी का फोर्स हर एक पे लगता है, इट एक्ट्स ऑन एवरीथिंग। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, कूलम फोर्स की बात करते हैं, जो कि बहुत स्ट्रांग है,
ये भी 1/4πε0 Q1 Q2 upon R स्क्वायर, इसकी रेंज भी इन्फिनिटी है क्योंकि R इन्फिनिटी होने पे ये 0 हो जाएगा। और ये काय के बीच में लगता है? ये चार्जेस के बीच में लगता है। चार्ज से आप भली भांति परिचित हो, यू आर वेल एक्वेंटेड विथ चार्ज। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये इसको हटा सकते हो? जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये ग्रेविटी का फोर्स मास एनर्जी पे सब पे लगता है, कूलम का फोर्स चार्ज पे लगता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ लगता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट्स बिटवीन क्वार्क्स। जो 10⁻⁻⁶ सेकंड पे सबसे पहले क्वार्क्स और ग्लूऑन्स बने, वो जो क्वार्क्स है उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगता है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स भी सबसे पहले आया। जब फोर्सेस, एक फोर्स से जब डिफरेंट फोर्सेस सेपरेट हुए तो सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेट हुआ 10⁻⁻⁶ सेकंड पे, और क्वार्क्स भी उसी समय आए। तो क्वार्क्स पे, ये क्वार्क्स जो है, इस पे कौन सा फोर्स लगता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। और ग्रेविटी तो सब पे लगती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, इट वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये किस पे लगता है? जैसे ग्रेविटी मास पे लगती है, कूलम फोर्स चार्ज पे लगता है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी है जिस पे ये फोर्स लगता है। तो उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया है कलर चार्ज। अब ये एक नेम है, कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा कि भाई कोई प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी पे फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स की खास बात यह है कि इसकी जो रेंज है वो बहुत कम है, 3 × 10⁻⁻17 मीटर, यानी न्यूक्लियस से भी छोटा, उतनी रेंज का ही ये फोर्स लगता है। और कलर चार्ज पे लगता है बिटवीन क्वार्क्स, लेकिन है बहुत स्ट्रांग। तो ये हमने अब इसलिए हमको ये जानना पड़ा क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी बनती है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस यानी फोर्स की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी काय में बनेगी? स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण, उसके बाद कूलम फोर्स के कारण, बाद में ग्रेविटी का नंबर आता है। ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत कम है, लेकिन हमको दिखती बहुत ज़्यादा है वो, लेकिन वो बहुत कम है। तो अब हम इस पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे और उसको हम कैसे काम में लाते हैं ये भी बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। आप देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी कूलम फोर्स में कब आएगी? जब अट्रैक्टिव फोर्स हो, यानी प्लस और माइनस चार्ज हो, और प्लस और माइनस चार्ज को यदि हम दूर ले जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। लेकिन आप देखो कि ऐसे हमारे पास प्लस और माइनस चार्जेस तो है ही नहीं। चार्ज कहाँ रहता है? एटम्स के अंदर। और एटम कैसा रहता है? न्यूट्रल। क्योंकि एटम के अंदर जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज भी है, तो एटम का टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो एटम और एटम के बीच में कूलम फोर्स तो लगेगा नहीं फिर। उसी प्रकार से अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो क्वार्क्स के बारे में मैंने बताया कि क्वार्क्स क्या है। तो वास्तव में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। जिस प्रकार से एटम एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है, वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये भी क्वार्क से बने हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और क्वार्क्स के बीच में कलर चार्ज पे फोर्स लगता है। तो ये यहाँ पर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वैसे तो 6 टाइप के क्वार्क्स है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये 2 टाइप के क्वार्क से बने हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। तो इसके अंदर अप क्वार्क के अंदर, प्रोटॉन के अंदर अप क्वार्क है और 2 डाउन क्वार्क है न्यूट्रॉन के अंदर। और प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क है और 1 डाउन क्वार्क है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स काय में लग रहा है? क्वार्क्स में लग रहा है।
लेकिन यदि इसका आप टोटल कलर चार्ज निकालो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो जीरो आएगा। जैसे टोटल चार्ज एटम्स का जीरो आ रहा है, वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी जो टोटल कलर चार्ज है वो जीरो आएगा, और इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगेगा, दो एटम्स के बीच में कोई कूलम फोर्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे अब कि फिर फोर्स कहाँ लग रहा है। तो देखो, जब दो एटम्स पास में आते हैं तो एक एटम के अंदर के प्लस और माइनस चार्जेस दूसरे एटम के अंदर के प्लस माइनस चार्जेस को देखने लगते हैं। प्लस चार्ज हेवी रहता है, उसका मूवमेंट कम होता है, माइनस चार्ज लाइट है, उसका मूवमेंट अलग होता है। तो माइनस चार्ज दूर चले जाते हैं, प्लस चार्ज पास रह जाते हैं, और अब यहाँ पर इम्बैलेंस हुआ, इम्बैलेंस फोर्स बिटवीन न्यूट्रल पार्टिकल। पहले न्यूट्रल थे वो, लेकिन अब क्या हुआ, अब पास आने पर कंडीशन क्या है, पास आना पड़ेगा उनको। पास आने पे इम्बैलेंस हुआ। अब माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की जो सेंटर है वो एक जगह नहीं रहे। सिमेट्रिकल एटम में क्या था, प्लस और माइनस के सेंटर एक ही पॉइंट पे आके न्यूट्रल कर रहे थे। अब ये डायपोल भी जैसा बन गया। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट रिपेल करता है, वैसे ही ये एटम के अंदर अब प्लस और माइनस चार्जेस जो है वो इनके सेंटर्स थोड़े शिफ्ट हो गए, और इसलिए हर एक एटम जो है वो डायपोल बन गया। और अब जैसे दो मैग्नेट्स के बीच में फोर्स लगता है, वैसे दो एटम्स के बीच में भी फोर्स लगेगा, लेकिन ये डायरेक्ट कूलम का फोर्स नहीं है, ये दो डायपोल्स के बीच का फोर्स है। इसको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं, या इसको आप रेसिडुअल कूलम फोर्स कह सकते हो, शेष कूलम बल। उसी प्रकार से जो न्यूक्लियन लेते हो आप, न्यूक्लियन में भी यही होता है। जब दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पास आते हैं तो इम्बैलेंस हो जाता है, जैसे एटम में हुआ, और उनमें भी एक रेसिडुअल फोर्स लगने लगता है। और इसी को हम शुरू में न्यूक्लियर फोर्स कहते थे, जो रेसिडुअल फोर्स है, क्योंकि उस समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल माना जाता था। लेकिन अब हम जानते हैं कि वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, और एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगता है वो रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग फोर्स है, शेष स्ट्रॉन्ग बल। वो इम्बैलेंस के कारण आता है, जैसे एटम्स के अंदर आया। तो इसलिए यदि पोटेंशियल एनर्जी बनेगी अब, तो वो डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स और डायरेक्ट कूलम फोर्स से नहीं बनेगी, बल्कि ये जो रेसिडुअल फोर्स है, डायपोल डायपोल फोर्स या रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग फोर्स, इन्हीं से पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, इसको अब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है या कूलम फोर्स है, दोनों की एक जैसी प्रॉपर्टी हो गई। जब वो दूर थे तो न्यूट्रल थे और उनमें कोई फोर्स नहीं था। जब वो पास आए तो इम्बैलेंस हुआ, इम्बैलेंस के कारण उनमें फोर्स जनरेट हुआ, क्योंकि उनके जो फोर्स के सेंटर्स है वो सेपरेट हो गए, शिफ्ट हो गए, प्लस और माइनस। तो उसकी जो आप पोटेंशियल का ग्राफ बनता है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये समझना है, लेकिन ये बात समझ सकते हो कि यदि बहुत दूर चले गए, वो बहुत दूर चले गए यहाँ पे, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो फिर से जो है वो इम्बैलेंस उनका, वो न्यूट्रल हो जाएंगे, पास पे आने के इम्बैलेंस रहेगा। तो उनका फोर्स जो है वो जैसे जैसे एक एटम जो है वो, एक एटम या एक न्यूक्लियन यहाँ मान लो आप इस जगह, और इसके रिलेटिवली दूसरे न्यूक्लियन को जब आप दूर ले जाते हो, तो शुरू में तो ये रिपल्शन का फोर्स है, इसको हार्ड कोर कहते हैं, हार्ड कोर पोटेंशियल। रिपल्शन का फोर्स है यहाँ तक, लेकिन इससे यदि वो इसकी तुलना में ये यहाँ चले जाता है तो अट्रैक्शन का फोर्स है। तो ये पोटेंशियल वेल एक प्रकार से बनाई है।
एक प्रकार से पोटेंशियल वेल बनाई है। थोड्या वेळाने गोष्टी करेन। ये पोटेंशियल वेल जो बनाई है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो यहाँ पे तो इतने डिस्टेंस पे तो वो रह ही नहीं सकते, इस डिस्टेंस पे तो रह ही नहीं सकते, यहाँ पे आ सकते हैं वो। यहाँ पे यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से इधर जाने पे बढ़ना शुरू होगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ये बात अलग है, मैं बाद में बताऊंगा आपको कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है और पास आने पे वो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है नेगेटिव साइड में। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। दूर जाने पे पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। और पोटेंशियल एनर्जी काय पे डिपेंड करती है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। जितना फोर्स ज़्यादा रहेगा, और फोर्स कैसा रहता है? फोर्स डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस कम होने पे फोर्स बढ़ता है। तो ये दोनों फोर्स के लिए, रेसिडुअल फोर्स के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर फोर्स हो, रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग फोर्स हो या रेसिडुअल कूलम फोर्स हो, पोटेंशियल का जो ग्राफ रहता है, शेप, वो तो यही रहता है। लेकिन ये जो रेंज है इसकी, जो डिस्टेंस यहाँ पे बताया है, ये डिस्टेंस सब अलग अलग है। जैसे इंटर न्यूक्लियन जो फोर्स है उसके लिए जो डिस्टेंस है ये 10⁻⁻15 मीटर का है, बहुत कम है, फ्यू फर्मी। लेकिन इंटर एटॉमिक फोर्स जो है उसके लिए डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, करीब 9×15 10 लाख गुना ज़्यादा है ये डिस्टेंस। और इसलिए यहाँ पर भी डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। तो जो रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो बहुत पावरफुल है एज कंपेयर टू द रेसिडुअल कूलम फोर्स, क्योंकि शेप एक जैसा होने पर भी इनकी जो रेंज है वो बहुत अलग अलग है। एक की फर्मी में है रेंज और एक की नैनोमीटर में है। नेक्स्ट, तो जो है वो रेसिडुअल स्ट्रेंथ ऑफ रेसिडुअल इंटरेक्शन की बात करते हैं हम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इसी से बनती है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की जो है वो इट इज 20 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज कूलम फोर्स and 10⁻⁻36 times as strong as 10⁻36 times as strong as gravitational force। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहीं हम कंसिडर ही नहीं करते, वी फॉरगेट अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऑल वी आर इंटरेस्टेड इन इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द रेसिडुअल कूलम फोर्स। उसको कभी कभी डायपोल फोर्स भी कहते हैं या वैंडरवाल फोर्स भी कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग रेंज के अंदर अलग अलग कंडीशन में इस पे अलग अलग नाम है। तो आप आगे बढ़ो, ये देखो यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम बताया है, ये फ्री है। फ्री है ना, बहुत दूर दूर है। दूर दूर है मतलब अब इनके बीच में बताया मैंने अट्रैक्टिव फोर्स है, तो जब दूर है तो इनमें सब एनर्जी कैसी है? पोटेंशियल एनर्जी है बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में आप देखो रेंज मैंने बताई थी आपको, उसकी फर्मी है और इसकी नैनोमीटर है। उसकी फर्मी में रेंज है तो इसके एटम्स के बीच में वो रेसिडुअल स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत दूर है ये। यहाँ पे केवल रेसिडुअल कूलम फोर्स लगता है। और जब वो फ्री है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो सब एनर्जी इनकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब यदि वो पास आते हैं, पास कैसे आएंगे? वो केमिकल रिएक्शन से। हाइड्रोजन को यदि आप बर्न करो, जलता है वो, तो पानी बनता है। तो पानी बनता है तो क्या हुआ? पास आ गए। पास आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये आपको ढेर सारी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो अब आपको समझ में आया कि केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको केमिकल एनर्जी कहते हैं।
और आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से मटेरियल को हम केमिकल रिएक्शन करें कि उसमें क्या होना चाहिए। दूर दूर एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जब नया मॉलिक्यूल बने तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो पास आ जाना चाहिए। अब ऐसे समय हीट जनरेट होगी तो सबसे बढ़िया फ्यूल हाइड्रोजन का रहता है, इसमें सबसे ज्यादा हीट जनरेट होती है। और इसलिए आजकल जो रिसर्च का वर्क चल रहा है वो हाइड्रोजन फ्यूल पे चल रहा है। हाइड्रोजन को सिलेंडर में हाई प्रेशर पे स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसकी साइज सबसे छोटी है, केवल 1 प्रोटॉन है, तो उसको हाई प्रेशर पे स्टोर करना लीक हो जाएगा वो उसमें से, वॉल्स में से। तो इस पे रिसर्च चल रहा है और ये सबसे बढ़िया फ्यूल रहेगा। लेकिन पेट्रोल है, कोल है, जो भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें एटम्स दूर दूर थे, रिएक्शन के बाद नए मॉलिक्यूल बन के पास आए तो आपको केमिकल एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। वास्तव में ये रेसिडुअल कूलम फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी है जो आपको काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिल रही है और आप उसका उपयोग कर सकते हो। अब आप देखो, न्यूक्लियॉन की बात करो तो न्यूक्लियॉन जो है वो उसकी रेंज तो बहुत ही कम है, फर्मी में है। फर्मी में है तो वहां पे जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी यदि वो दूर है तो बहुत ही ज़्यादा रहेगी। फोर्स डिस्टेंस के कारण कम डिस्टेंस पे फोर्स बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वेरी वेरी स्ट्रांग। वैसे तो 20 टाइम्स ही ज़्यादा है वो कूलम फोर्स से, लेकिन डिस्टेंस कितना कूलम फोर्स में ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस एकदम कम है। तो इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहती है जब दूर है वो। और यदि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में वो पास आते हैं तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और आपको उसको आप न्यूक्लियर एनर्जी कहते हो। और इसके लिए 2 टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, एक फिशन रिएक्शन होती है और एक फ्यूजन रिएक्शन होती है। तो मैं आपको मैग्नीट्यूड बताता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो कूलम एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के मैग्नीट्यूड में कितना अंतर है। जब हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन होता है तो पर पार्टिकल एनर्जी 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मिलियन है 10 लाख, 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर पार्टिकल। और फिशन में, फिशन के अंदर ये जो है वो 2 MeV पर पार्टिकल है। यानी सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? सबसे ज्यादा इफेक्टिव है फ्यूजन रिएक्शन। और अभी अभी आपने पेपर में पढ़ा होगा कि चाइना ने और एक और कंट्री है, कोरिया, ताइवान, कुछ तो भी, उन्होंने जो है वो सन बना लिया है लैब में। यानी उन्होंने ये फ्यूजन को अचीव कर लिया है, लेकिन फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, कुछ माइक्रोसेकंड के लिए वो उसको कर पाए। लेकिन फिशन रिएक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। और केमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी जनरेट होती है कंपैरेटिवली? जैसे हाइड्रोजन बर्न होके वाटर बना तो उसमें ईवी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कम डिस्टेंस के अंदर कि नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाता हूँ। देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये राइट हैंड साइड के डायग्राम में ये अलग अलग है, यानी ये न्यूक्लियस नहीं बनाया है इन्होंने। तो सबकी सब एनर्जी इसकी किस फॉर्म में है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। और जब ये पास आते हैं और न्यूक्लियस बनाते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड के डायग्राम में बनाया मैंने, तो बहुत सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और हमको फिशन और फ्यूजन रिएक्शन मिलती है। फ्यूजन से हाइड्रोजन बॉम्ब बना है, फिशन से एटम बॉम्ब बना है। तो ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि जब वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, फ्री फॉर्म में रहते हैं, तो वो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मास के रूप में दिखती है। यानी राइट हैंड साइड के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यदि आप इनका मास ऐड कर लो और लेफ्ट हैंड साइड में जो न्यूक्लियस बना है उसका मास आप कैलकुलेट करो, तो आपको दोनों के मास के अंदर डिफरेंस, मेजरेबल अमाउंट डिफरेंस दिखेगा। यानी E इक्वल टू mc स्क्वायर से जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है, उतनी एनर्जी c स्क्वायर से भाग कर लगा के कम कर दो मास के रूप में, तो मास का डिफरेंस दिखता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी, बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट डिफाइंड होती है। तो ये हमारे लिए यूजफुल एनर्जी है। यूजफुल एनर्जी कहाँ पर है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, और वो अगेंस्ट एट्रैक्टिव फोर्स है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी है स्ट्रॉन्ग फोर्स के रेसिडुअल फोर्स में रहती है, उससे कम केमिकल और ग्रेविटी के अंदर तो ये नेग्लिजिबल रहती है। नेक्स्ट। तो इस प्रकार से मैंने आपको एनर्जी कहाँ पर हमारे लिए अवेलेबल है और उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं, और लास्ट में आप सब फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि कुछ ऐसा जनरेटर बनाओ कि जिसमें एक तरफ मास डालो और दूसरी तरफ हमको एनर्जी मिले। कोशिश करो ऐसे बनाने की, जो कि नियरली इम्पॉसिबल ही है। मतलब धन्यवाद आपको। अब यदि आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। If somebody has any question, they can put in chat box, please. चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने क्वेश्चंस। सर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ जरूर जरूर पूछिए आप। हाँ, आपने बोला कि जो आपके इंटरएक्टिव फोर्सेस हैं चारों, हाँ। उनमें लिमिटेड अवेयरनेस रहती है। लिमिटेड, हाँ लिमिटेड यस, अवेयरनेस। हाँ। सो यहाँ पे उनको तो सब कुछ पता है, कितने दूरी पे हैं, कितना चार्ज है उनके पास, सब कुछ उनको पता है। देन हाउ इट इज लिमिटेड अवेयरनेस? लिमिटेड मीन्स दैट अवेयरनेस is only for the property mass of the body. ये लिमिटेशन है। आपकी जो अवेयरनेस है, आपकी अवेयरनेस जो है वो सब इंटरेक्शंस की है। आपकी अवेयरनेस जो है वो आप जो समझते हो, हर एक चीज को समझने की आप में क्षमता है। यू कैन अंडरस्टैंड एवरी इवेंट टेकिंग प्लेस इन द यूनिवर्स। सो आपकी अवेयरनेस तो अनलिमिटेड है, लेकिन उनकी अवेयरनेस लिमिटेड इन द सेंस कि बस वो उतना ही समझते हैं कि एक मास को दूसरे मास की प्रॉपर्टी अवेयरनेस उनको मालूम रहती है और वो उन्हीं को वहीं पे वो फोर्स लगा सकते हैं। इतनी, इसलिए मैंने उसको लिमिटेड अवेयरनेस कहा है। आप समझ गए मेरे क्वेश्चंस हैं? हाँ आया सर समझ में मुझे। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है, if all interaction forces are conservative and their derived forces are also conservative, then what is the origin of dissipation forces? Dissipative forces are actually not the natural forces. वो नेचर ने यही चार फोर्स नेचर के अंदर अपीयर हुए हैं सीन पे। और डिसिपेटिव फोर्स जो है वो फ्रिक्शन को यूं समझो आप कि जब एक बॉडी को आप दूसरे बॉडी पे चलाते हो तो यदि वहां पे आप माइक्रोस्कोप, यदि आपकी आँख जो है वो माइक्रोस्कोपिक इवेंट देख सके तो आप देखोगे कि एक सरफेस में जो बहुत सारे एटम्स है, मैं बता सकता था बोर्ड पे, ऐसे चिकना सरफेस नहीं है वो, ऐसे एटम्स उसमें निकले हुए हैं। वो जो आपका ये रहता है सरफेस स्कैनिंग डिवाइस, उसमें आपको दिखता है वो कैसे एटम्स निकले हुए। तो जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं एटम्स, और फंस जाते हैं, और जब उसको आप चलाते हो तो उसमें वाइब्रेशंस होते हैं।
क्योंकि वो क्रिस्टल्स होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशंस होते हैं मतलब उनकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो जो वाइब्रेशंस है उससे हीट जनरेट होकर वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो जब जब इस प्रकार से हीट जनरेट होगी फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम दीज नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस से डिराइव्ड नहीं है ये फ्रिक्शनल फोर्स। नेचुरल फोर्सेस से डिराइव्ड फोर्स कौन सा? इलास्टिक फोर्स है, सरफेस टेंशन का फोर्स है, वंडरवाल फोर्स है। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स अलग रीजन से, इसलिए वो फ्रिक्शनल फोर्स है, वो डिसिपेटिव फोर्स है। ओके, आर यू सेटिस्फाइड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, जियोथर्मल एनर्जी को कैसे समझेंगे? किसे? जियोथर्मल एनर्जी को, जियोथर्मल। नहीं, क्लियर नहीं आ रहा है आवाज। जियोथर्मल सर, जियोथर्मल। जियो, हाँ, जियोथर्मल को कैसे समझेंगे? नहीं, थर्मल एनर्जी, व्हाट इज थर्मल एनर्जी? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी किस फॉर्म में रहती है। तो हीट एनर्जी इज, काइनेटिक एनर्जी ही वास्तव में हीट एनर्जी है। तो हीट एनर्जी इज प्रेजेंट इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ मोशन, इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड में आ जाता है। वाइब्रेशन यदि और बढ़ गए और ये वो वैन डर वाल्स फोर्सेस को, इनका जो अट्रैक्शन है उसको क्रॉस करके चले गए बाहर, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सब्सटेंस है ना। व्हाट इज द थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी इज द वाइब्रेशनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोशन। तो ये जो डिफरेंट बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बने, अर्थ है, मून है, सन है, ये जो ऑब्जेक्ट्स बने, तो अर्थ का जो कोर है इट इज इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन आयरन। पिघला हुआ लोहा है अर्थ का कोर। कितनी एनर्जी है वहां पे? बहुत ज्यादा एनर्जी है। उसी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहेंगे। एनर्जी की कोई कमी नहीं है। पृथ्वी के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर कुछ माइल का लेयर छोड़ दिया तो अंदर जो है वो पिघलता हुआ लोहा है, पूरा लाल लाल गोला, जो कि कभी कभी पृथ्वी को छेद करके बाहर लावा के रूप में आ जाता है। तो वो जियोथर्मल एनर्जी है, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। ऑल अदर एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस हैज द सोर्स सन। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी ऑन द अर्थ। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी एनर्जी है जिसको आप जियोथर्मल एनर्जी कह सकते हो। दैट इज व्हाट आई थिंक जियोथर्मल एनर्जी। बट इट इज डिफिकल्ट टू यूज इट। यूजफुल एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप सर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ साइंटिस्ट केम टू नो द नंबर 10⁻⁻⁶ सेकेंड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्वार्क्स आफ्टर बिग बैंग? This is a very difficult question and also very difficult for me to answer, क्योंकि ये जो है वो देखो, एक बात है बिग बैंग यानी एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग हुआ, तो इसका क्या प्रूफ है कि बिग बैंग हुआ? इसका प्रूफ क्या है कि बिग बैंग हुआ? यदि आपने एक वो रस्सी बम देखा होगा, रस्सी बम के अंदर वो जो छोटा सा गोला है उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी।
और उसको जब आप वो उसको जलाते हो तो उसके अंदर वो सब केमिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर वो फूटता है और उसके अंदर की चीज़ें जो है वो बिखरती है बाहर चारों तरफ। तो ये एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। और ये जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है अभी भी, तो उसको जो मोमेंटम मिला उस समय बर्थ के समय, उस मोमेंटम के कारण ये रेड शिफ्ट एक फिनोमेना होता है। उस रेड शिफ्ट से पता चलता है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है और उससे उन्होंने जो है वो पता लगाया कि उसका एक विस्फोट हुआ है, यानी उसकी बर्थ जो है वो बिग बैंग से हुई है। और उसके पीछे उनको बहुत सारे, अब ये थ्योरी मेरे को भी नहीं मालूम है, टू बी वेरी फ्रैंक आई डू नॉट नो द आंसर टू योर क्वेश्चन कि 10⁻⁻⁶ उन्होंने कहाँ से निकाला। लेकिन उसका जो है वो एक क्रोनोलॉजी है कि पहले जो है वो उसमें विस्फोट हुआ, लेकिन उसका जो है वो रनअप नहीं हुआ, मतलब फैलना शुरू नहीं हुआ। फैलना शुरू हुआ उसका थोड़ी देर के बाद फैलना शुरू हुआ, एक्सपेंशन। और उन्होंने वो टाइम निकाला है और उसकी पूरी क्रोनोलॉजी है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो मुझे भी नहीं मालूम है। आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। सर और तो कोई क्वेश्चंस नहीं हैं? योर लेक्चर वाज रियली वेरी फैंटास्टिक सर। बहुत बेसिक था लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। यू एक्सप्लेन वेरी वेल अबाउट द बिग बैंग थ्योरी एंड द मोस्ट फंडामेंटल लॉ के बारे में आपने बताया, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। एंड देन यू एक्सप्लेन अबाउट द 4 इंटरैक्शंस। और मेरे लिए भी सर ये नया है कि दे हैव लिमिटेड अवेयरनेस, मीन्स मेरे को भी नहीं पता था कि दिस फोर्सेस हैव अवेयरनेस एंड दैट टू लिमिटेड अवेयरनेस। सो इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। और मेरे हिसाब से जो हमारे बच्चे हैं, जो एमएससी और बीएससी के बच्चे ये लेक्चर सुन रहे हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली एकदम ही इंटायरली न्यू कॉन्सेप्ट है कि फोर्सेस हमारे जो हैं उनमें अवेयरनेस होती है। एंड फिर आपने उसको क्वांटम मैकेनिक्स से भी रिलेट किया। और फिर आपने जो बताया कि जो भी कुछ है फाइनली एवरीथिंग इज एनर्जी। हम आप बोल भी रहे हैं दैट मीन्स एनर्जी, एंड द यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी ओनली। एंड दैट टू पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? इट इज अगेन आई थिंक हमारे बच्चों के लिए नया होगा कि डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है या रेसिडुअल फोर्स है, उसी से हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी आई। तो बच्चों ने हमारे बहुत कुछ सीखा। जितने भी हमारे एमएससी के बच्चे हैं ऑलरेडी आपसे पढ़ रहे हैं, बट ये टॉपिक उनके लिए बिल्कुल नया है। एंड आई होप दे हैव लर्न ए लॉट। और ये फ्यूचर में भी उनके लिए ये कॉन्सेप्ट हरदम के लिए काम आएगा। थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल लेक्चर। नाउ आई रिक्वेस्ट मयंक शर्मा सर to give vote of thanks. Mayank Sharma sir, please. Thank you, Usha ma'am. Respected our today's speaker, Dr. S.B. Velankar, respected Principal IPS Academy Indore, and all head of the department. It is my honor to express my sincere thanks to all of the members who are involving in this lecture series. First of all, I would like to thank our today's speaker, Dr. S.B. Velankar from Department of Physics, IPS Academy Indore, for delivering such a wonderful lecture. I would like to thank our principal, Dr. Premlata Gupta, for her full support. I would like to thank Dr. Jiten Tripathi, Department of Physics, IPS Academy Indore, for motivating to organize this event. I am thankful to Dr. Usha Singh for coordinating this event. I am thankful to all the faculty members of Department of Physics and all the participants who are involving in this lecture series till the last moment among with us. I am thankful to all the participants. Last but not least, I am thankful to the Management IPS Academy for providing us all the facilities. Thank you so much. Thank you sir, thank you. त्रिपाठी सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? पीके दुबे सर भी हैं, अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। हमने कहा सर का लेक्चर सुनना हरदम बड़ा इंस्पिरेशनल रहता है, सर से हरदम कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हरदम आगे भी और हम लोगों को ऐसे लेक्चर्स देते रहे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फिजिक्स में इंटरेस्ट इससे पता चलता है, जागरूक होता है ना।
अगला लेक्चर जब भी होगा हम अनाउंस करेंगे जल्दी, इसी मंथ एक और सीरीज का अगला लेक्चर हम लोग को करना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है मैडम, बंद मीटिंग कर। एंड करती हूँ सर, मीटिंग अच्छा, एंड करती हूँ। बिल्कुल। ओके ओके। क्या बोले? पीछे दुबक है? हाँ, ये पीछे दुबक है ना? बहुत तेज थे, हाँ, बहुत तेज थे सर, मैं भी सुन रहा था। सुना? जी सर। ठीक लगा है? सर काफ़ी थॉरो लगता है। हाँ? सर जो आपकी अवेयरनेस की बात कर रहे थे। ये इसको मैं ये हो आपने ये हो गया क्या? हाँ हो गया सर। बंद हो गया ना? लीक कर दिया, राइट क्लिक हो गया सर। हाँ।